میں نے جو کام کیا ہے وہ مسنگ پرسنس کے اوپر. ایات بلوچ ہے, ایات بلوچ جو کہ اسٹوڈنٹ تھا جسے 8 گولیاں ماری گئی اس کے ماں باپ کے سامنے. ہماری فیملیز میں ایسے اسٹوریز ہیں جن کو اٹھایا گیا, ان کو مارا گیا اور ان کی آنکھیں تک نکال دی گئی ہے. تو بلوچستان میں باقی سب کے انٹرویوز دیے گئے, میرا انٹرویو کاٹا گیا تھا اور مجھے ٹاپک کے لیے کام کرنے کے لیے بھی اجازت نہیں ملی تھی, لیکن پھر بھی میں نے کام کیا اسی ٹاپک. گدان ٹی وی چاروں کا نام ہے مہرانی درود سرباتا شرف اندش مرجع و ہر کجات شمع زند ماں وشبا انچو گشن کے ادب زند آدین کے گڑا ما چارن کے بلوچی ادب تایا کہ بلوچستان ادب تہا بلوچستان زند یا بلوچانی زند چنچو حد تک پیش دار یا گندگ بو گئے گو بلوچستان مرچی گی جاور حال کے مسنگ پرسن یا کہ مردمان برگو گار کنگو اغوا کنگو پدانو کشگو شہید کنگو دور دیگ ای وڑے جاور حال ایشی چ پیش کے ایٹمی دھماکہ وڑے یک جیڑ ہی بوتے کہ بلوچستان تھا بوتے اگامی ایٹمی دھماکہ دیگا جاگے بوتے رشیا وڑے جاگے بوتے دیگا ملکی بوتے گڑا او دا علامہ لٹریچر ہے پورا لفظاں کے ایک باب ہی سر بند بوتے گا گوں بلے بلوچ آزمان کارانی تھا یا کہ بلوچ گدار نویس نہیں تھا بلوچ مرچی جاور حال کے مسنگارو بیگواں کے زور برتے مردم میں بوں یا کہ آئین کوشش کو دور دیکھ بوں یا کہ ریاستی جاب رہا یا کہ ہما مردم کے آئی ماسو پیساں کے داغ برگ بوتا گار کنگ بوتا گوڑا ای وڑے ایک کارست پرچہ تک گو نیوں گو آیا یہ مروچی کے میں لٹریچر باہر نیا شاعر یہ پیڑ آنگتاں گیشتر ہمیں چیز گندگا آئے گا یا بلے آزمانہ کور گدارانی تھا ایش چیز سکا باز کم گندگا آئے گا اسے سر نوشتہ کنگ نبو ہو گئیں کہ میں رائٹر کے استے نوشتہ کنگ نبو ہو گئیں انچوش کہ عطاشادی کو مثال دیاں گوڑا عطاشاد پورا بلوچستان بوتا و گپ کرتا آئی بلوچستان تا ہرچ ناروائی کہ بوتا آئی خلاف آئی مزاحمت کرتا آئی گوشتا چاہے سرداری بوتا چاہے زرداری بوتا چاہے ریاستی بوتا چاہے دیگا طوفانی ہورے و قدرتی آپاتی بوتا آیا نا عطاشادہ وتی شاعریت درنگاز کرتے گا ہمیش کے گوشن کہ عطاشادہ ستر برز بال کرتا بلے آئی پادگ وتی زمین سر بوتے گا دنیا تار چکس کے آرٹسٹاں یا کیا فنکاراں یا کہ نبشتکاراں وتی وحدے سوسائٹی ہے چاگرد ہے ہما جیڑا کیا زندگی دی مشکلاں آیا ضرور عکاسی کنا پینٹراں جینوسائیڈ سر کرتا جنینانی سر ظلم بو کے حوالے موضوع ضرورتا ہوتی نوشتہ کرتا گا یا کہ جنینان امپاور کرنے خاطر پینٹنگ موضوع بوتا گا ہمیں بڑا عید کا جینوسائیڈ یا کہ قدرتی طوفان بوتا گا یا کہ کم خوراکی بوتا یا کہ مرگ بوتا گا کہ جینوسائیڈ شکل کے دیکھو قومانی وجہ سے قدرتی والے بوتے گا یہ اکثر پینٹنگ کا نہیں تھا اور نبشتکارن تک گندگا کا آیا گا ایک اپا مرچی میں دہرائی وسطہ جانا گا کہ مانا بعض وشی بو کہ بانو ہانی بلوچ کے ایک فائن آرٹس اسٹوڈنٹ ہے آئی وتی موضوع بلوچستان امی گار و بیگواں ہیں زور برتگ مردمانی سرا ایر کرتے ہوتے 30,000 گوڑا آئی جوانے پینٹنگ جوڑ کرتے گا ہما ماسانی فیلنگس کے آنی چوک برگ بوتے گا ہما گوہارانی فیلنگس کے آنی براس برگ بوتے گا حیاتی زی وڑے خوش ہے کہ حیاتی شہید کرنے کے کیس آئی ہم پینٹنگ نہیں تھا تو گندگا کہتے ہیں تو مرچی میں ترجمہ ورال گو میں گپ کنا یا دیوان کنا گو بانو کھانی بلوچ ہے کہ وہ آرٹ اور فن حوالے اور ہمیں آئی کارانی بابتا. السلام ہانی بلوچ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ کا بہت بہت پہلے شکریہ کہ آپ آئے ہمیں جوائن کیا مرگدان میں سب سے پہلے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کیسے آپ ٹھیک ہیں جی شکر اللہ کا ٹھیک ٹھاک. آپ کے آرٹ کے حوالے سے جو میں نے ایک دو ویڈیوز بھی دیکھے تھے کہیں سوشل میڈیا میں تو اس حوالے سے جو آپ کا فن ہے یا ہنر ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے اور آج کے حالات پہ ہیں تو اس پہ ہم ضرور بات کریں گے مگر پہلے آپ ہمارے جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں اپنے بارے میں بتائیں گے کہ ہانی کون ہے. جی میں آنی بلوچ میرا تعلق کوئٹہ سے ہے. میں بلوچستان یونیورسٹی میں فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں. کون سے ایئر میں ہیں فائنرس 4th ایئر میرا ایئر تیسری جی ہاں دراصل فائن آرٹس کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ مسئلے مسائل ہیں اس پہ بھی بات کریں گے مگر آپ خود ہمیں بتائیں گے کہ آرٹ کیا ہے. جی آرٹ ایک فن ہے جو کہ سب انسانوں میں ہوتا ہے. کسی میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے
किसी में थोड़ा कम होता है, लेकिन सब में होता है। कोई इसे आगे लेके जाना चाहता है, कोई इसे लेके जाना ही नहीं चाहता है, वहीं पे रोक देना चाहता है। आपने आर्ट क्यों चुना? मुझे आर्ट हमेशा से मुझे पसंद था, क्योंकि मैं जब स्कूल में थी तब से मैं ड्राइंग बनाती थी। फिर जब मैं कॉलेज में आई तब भी मैं बनाती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था आर्ट की तरफ। कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, पेंटिंग करना पसंद था। तो इस वजह से मैंने एफएससी किया। उसके बाद मतलब फिर मैंने एडमिशन कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब लिया तो मैंने आर्ट्स में जाकर लिया, क्योंकि मुझे खुद पसंद था उसी तरफ जाना। तो जिस तरह के दूसरे आर्टिस्ट हैं इंटरनेशनली अगर हम देखते हैं कि जो पिकासो है दूसरे हैं, तो वो अपने समाज की सोसाइटी की अक्कासी करते हैं या अपने एरियाज़ के होने वाले जो जुल्म होते हैं जबर होते हैं उनको पेंटिंग की शक्ल में देते हैं। जिस तरह के कोई राइटर होता है वो अपने लफ्ज़ों में बयान करता है, वही फीलिंग्स हैं कि कहीं औरतों पे जबर हो रहा है उन पे भी पेंटिंग है, कहीं बच्चों पे या न्यूट्रिशन की कमी के जो मसाइल हैं उनको आर्टिस्ट में करते हैं। बलूचिस्तान में इस तरह अमूमन कम देखा जाता है कि जो करंट इश्यूज़ पे हों, अक्सर कल्चरल हवाले से या कदीम चीज़ों को दिखाना उनको। तो आपने कैसे चुना कि मैं एक मुख्तलिफ ज़ाविये से काम करूं, और आप कौन से सब्जेक्ट पे काम कर रही हैं? जी, मैंने ये चुना क्योंकि मैं बलूचिस्तान में मसले यही चल रहे हैं जो मैंने अपने आर्ट में शो किया है। सबसे बड़े मसले भी यही है और मसाइल भी जो हम देखते हैं हमारे घरों से लेकर हमारे आसपास में, सबसे बड़ा मसला यही है। तो इस वजह से मैंने ये आर्ट चुना कि मैं बनाऊं या इस टॉपिक को मैं लूं। क्या चुना? ये टॉपिक ये थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि टॉपिक क्या है और करती क्या हैं आप? जी, मैंने मिसिंग पर्सन्स पे काम किया था। जो बलूचिस्तान में सबसे बड़ा इस वक़्त मसला है मिसिंग पर्सन्स है, और वो जो ख़वातीन और बच्चे जो कि घर में कोई मिसिंग होता है तो उन पे क्या बीतती है और उनकी हालत क्या होती है, वो टॉर्चर होती है। वो पूरा घर उसी सदमे में रहता है हमेशा के लिए, जब तक वो बाजियाब ना हो। और बाजियाब होने की भी बहुत से चांसेस कम होते हैं, क्योंकि 15-15 16-16 साल तक वो नहीं होते। इस वजह से मैंने खुद ये आर्ट चुना, क्योंकि मैं खुद एक ऐसी फैमिली से हूँ, तो मुझे पता था कि क्या से क्या बर्दाश्त करना पड़ता है उस खानदान को, उस घर वालों को। तो इस वजह से भी मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया कि मैं इस पे काम करूं, क्योंकि और टॉपिक मेरे पास थे ही नहीं। जब मैं यूनिवर्सिटी में गई तब मैंने ये सोचा कि मैं इसी पे काम करूंगी, कि मेरा तो टॉपिक ये होगा मिसिंग पर्सन। मैंने आपके एक दो वीडियो देखे थे, मतलब आर्ट के बहुत सारे शोबे हैं, जैसे कि पेंटिंग, कुछ लोग जस्ट कलर्स करते हैं अपनी फीलिंग्स की अक्कासी, अपना टॉपिक और सब्जेक्ट बयान करते हैं, या तो कुछ हार्डबोर्ड पे बनाते हैं इस तरह, कुछ पत्तों पे बनाते हैं। और आपके मैंने देखा था कि आपने कुछ कपड़ों पे बनाया था। आप सिर्फ कपड़ों पे ही करते हैं या दूसरी जगहों पे? नहीं नहीं, मैं कपड़ों पे तो मैंने सिर्फ अपना थीसिस का काम किया था। वैसे मैं पेंटिंग करती हूँ, पेंटिंग की स्टूडेंट हूँ। तो मैंने कपड़ों पे सिर्फ अपना थीसिस का वर्क किया था, जो कि बलूचिस्तान में मुज़ाहमत खवातीन अब सबसे ज्यादा आगे है, इस वजह से। और मेरा काम ये, हमारे कल्चर कैसा है, मतलब बलूची कपड़ा, बलूची ड्रेस जो मैंने इस पे बनाया, क्योंकि वो हमारा सकाफत है, हमारा पहचान है। तो इस वजह से मैंने इस कमीज के ऊपर बनाया। और पहले मैंने ये काम नहीं किया था, मैंने सिर्फ अपना थीसिस का काम इस पे किया है। उससे पहले मैं पेंटिंग करती थी। तो फिर इस ये मौजू को चुनना बलूचिस्तान में और ख़ासकर इन हालातों में, तो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का रवैया कैसा रहा? फिर उसने आपको ये थीसिस कर, बहुत सारे हसास टॉपिक होते हैं, वो वहाँ तो अलाउड नहीं है, आज़ादी नहीं है, जिस तरह के किसी शायर को या किसी राइटर को भी इख्तियार नहीं है कि वो अपनी या सच लिखे। तो आपने क्या मुश्किलात देखे, क्या चैलेंजेस आपके सामने, क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से बाकी? जी, मैंने जब पहले अपना टॉपिक डिस्कस किया अपने सुपरवाइजर से, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इस टॉपिक पे काम नहीं कर सकती, मिसिंग पर्सन पे आपको काम करने हम नहीं देंगे। तो लेकिन मैंने पहले ही दिन से सोचा था कि मैं मिसिंग पर्सन पे काम करूंगी, मतलब जो भी हो। फिर मैंने उसी पे काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि उसने मुझे
नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने फिर अपने किसी और टीचर से बात किया, फिर उसने मुझे बोला कि नहीं आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, बस फिर मैंने अपना सुपरवाइज़र ही छोड़ दिया। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई, मतलब मैंने 4 महीने तक 3 से 4 महीने मैंने घर में बैठ के ही काम किया है, और बगैर सुपरवाइज़र के, मतलब एक टीचर ने जो मेरा साथ थोड़ा-सा दिया, मुझे कुछ पिक्चर्स भेजे कि आप इस तरह काम कर सकते हो, तो फिर मैंने उसी से कॉन्टैक्ट किया। जो मेरा खुद का सुपरवाइज़र था, मैंने उससे बात नहीं किया। मैं घर जब आई तो मैंने उसी टॉपिक पे वापस मैंने काम स्टार्ट किया। तो आपके काम को दूसरे लोग, ये दूसरे स्टूडेंट्स या के सोसाइटी के बाकी लोग हैं, वो कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं इनको? जी, मेरा काम, जितने भी जो मेरे एग्जीबिशन में लोग आए उन्होंने उनका रिस्पांस बहुत अच्छा था। किसी ने मुझसे ज़्यादा सवाल भी, मतलब मेरा टॉपिक के हवाले से मुझसे पूछा, और मेरा काम देखने में ही पता चल जाता है कि मैंने किस चीज़ के ऊपर किया है। तो लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अच्छा रिएक्ट था। किसी का भी मेरे साथ कोई बुरा रवैया नहीं था कि ये तुमने ये किया, ये क्यों किया है, या नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो भी लोग आए मेरे काम को देखने के लिए, वो उन्होंने बोला कि अच्छा टॉपिक है, ज़बरदस्त, सही किया है तुमने, इस पे काम किया। एक तो ओवरऑल आपने कितने एग्जीबिशन किए हैं? मेरा पहला ही एग्जीबिशन था अभी जो है दिसंबर में, उससे पहले हमारा कोई एग्जीबिशन नहीं हुआ था, मैंने एग्जीबिशन कोई नहीं किया। एक तो यह है कि आर्ट, फाइन आर्ट्स बज़ात खुद एक मेहनत तलब सब्जेक्ट है, कि यानी इसमें आपको सब्र बर्दाश्त पेशेंस चाहिए बारीकी से। और दूसरी बात यह है कि हमारे सोसाइटी में लोग अभी तक पता नहीं कि इस दौर में किस नज़र से देखते हैं। ओवरऑल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ कि बलूच सोसाइटी में। जी, यहाँ पे आर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हमारी सोसाइटी में भी नहीं है, हमारे आसपास आर्ट को कोई सब्जेक्ट माना ही नहीं जाता, बलूचिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे भी रोका गया था, लेकिन मैंने किया ये, आर्ट के हवाले से मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया, ये डिपार्टमेंट मैंने सिलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा रुझान नहीं है आर्ट की तरफ, ना ही कोई फैसिलिटीज है, ना ही यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ है, तो उस वजह से आर्ट का कुछ ऐसा सीन नहीं है यहाँ पे। तो और आप जो करते भी है स्टूडेंट, जो यहाँ से ग्रेजुएट होते भी है, उनका भी कोई फ्यूचर तो है ही नहीं, तो इस वजह से आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है जिससे आप मुझे इंस्पायर हुए हैं? मुझे वैन ऑफ पसंद है। मुझे जो पसंदीदा आर्टिस्ट है वो वैन ऑफ है। क्यों उसमें खासियत क्या है उसकी, किस वजह से आप उसको पसंद करते हैं? उसका काम बहुत अट्रैक्टिव है, मतलब जो आप उसकी पेंटिंग में जो आप देखते हो ड्रीमी है, वो जो मैं देखती हूँ या कोई और, जो कोई सीन हम जब देखते हैं ना, तो हम किसी और तरह से उसे ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, लेकिन जो वैन गॉग की पेंटिंग में जो दिखाई देता है ना, वो किसी और तरीके से, उसके कलर्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, कुछ कलर्स यूज करते हैं और बहुत अट्रैक्टिव उसकी पेंटिंग होते हैं, इस वजह से मैंने उसी को, वो मुझे पसंद है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के हवाले से जो फाइन आर्ट्स है, बाकी जिस तरह मैंने एक और आर्टिस्ट का इंटरव्यू किए थे, उससे भी मैंने एक क्वेश्चन की थी कि बाकी जो फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, फर्स्ट को लाहौर में हैं, वहाँ दीगर आर्ट पढ़ाए जाते हैं, मतलब म्यूज़िक पे आप काम कर सकते हो, डांस पे कर सकते हो, किसी और चीज़ों पे। तो बलूचिस्तान में जो फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है उस पर मुश्किलात बढ़ रहे हैं, कभी उसको इधर शिफ्ट करते हैं, कभी उसको उधर। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इसको बंद भी करें। तो यूनिवर्सिटी का रवैया क्यों फाइन आर्ट्स के साथ इस तरह है, और अभी क्या मसला है? जी सर, जब सर 2021 में यूनिवर्सिटी, हमारा डिपार्टमेंट जो फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में था, वहां से हमें शिफ्ट किया गया, हमें शिफ्ट किया गया बरूरी रोड पे जो सिटी कैंपस है, हमें वहां पे शिफ्ट किया गया। और वहां पे 2024 में इसी साल वहां पे मेडिकल के स्टूडेंट्स आए, मेडिकल वालों ने उस पे कब्जा किया, सिर्फ हमें 3 क्लासेस दिए गए, और हम 4 क्लासेस के स्टूडेंट थे, लेकिन हमें दिए गए थे 3, और एक ऐसा क्लास था कि जो कि कभी इस कोने में उसका क्लास होता था साइड पे, कभी उस क्लास में उस कोने पे उसका साइड साइड पे उसका क्लास होता था। तो क्लासेस भी हमारे 3 दिए गए थे, हम थे 4 क्लासेस। उसके बाद अभी वापस हमें वहां से भी निकाला जा रहा है,
हमें अभी वापस सरिया रोड पे जेबी कैंपस में लेकर आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी ऐसे सुनने में आया कि वहाँ पे भी हमारा कोई अलग सा डिपार्टमेंट तो नहीं है, सिर्फ 2-3 क्लासेस शायद वहाँ पे भी हमें मिल रहे हैं, और इसी तरह हो रहा है। और 1-2 साल के बाद शायद कुछ सालों में फाइन आर्ट्स बंद हो जाएगी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि चाहते ही नहीं शायद कि ये आर्ट्स हो डिपार्टमेंट हमारा। तो ये जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो उनको क्या पता नहीं है, वो कभी क्यों एक्शन नहीं लेते इस चीज़ पे, तवज्जो ही नहीं देते बल्कि। जी सर, वो तवज्जो ही नहीं देते, उनको शायद मालूम ही नहीं है या फर्क भी नहीं पड़ता किसी को। स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट एक किया था उसी दिन, अभी 6 दिसंबर को किया था, लेकिन वो बात भी वहीं पे रह गई शायद, कि हमें यहाँ से ना निकाला जाए। हमारा डिपार्टमेंट तो वैसे भी हमसे लिया गया, अभी कुछ क्लासेस हमें दिए गए थे, वो भी हम लोगों से ले लिए लिए हैं उन्होंने। तो स्टूडेंट्स कर भी कह सकते हैं, स्टूडेंट्स अगर करेंगे ना, ये हमारी टीचर पता नहीं चाहते हैं कि हम रहे या नहीं रहे, ये डिपार्टमेंट। मतलब डिपार्टमेंट के साथ साथ लोगों में जो पार्टीज़ हैं वो इनको जितने इम्पोर्टेंस देना चाहिए नहीं दे रहे हैं, तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो इससे इससे आप क्या अंदाज़ा कर सकते हैं या क्या बता सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में आर्ट ने कितनी तरक्की की है या कितना प्रोग्रेस किया है? जी, यहाँ पे तो आर्ट्स जहाँ स्टार्ट बलुस्तान में, तो जहाँ पे शुरू हुआ वहीं से की वैसे यहाँ पे कोई तरक्की तो हमें नहीं दी गई, ना ही हमारी कोई ऐसी फैसिलिटीज आर्ट के हवाले से होती है यहाँ पे, ना ही हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा कोई सीन है, ना यहाँ पे कोई एग्जीबिशन होता है। तो उससे ना ही हमारी पेंटिंग शायद खरीदी जाती है, कभी भी किसी के मतलब 4 सालों में अगर हमने कोई पेंटिंग की है ना ही किसी ने दिया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम पढ़े या नहीं पढ़े, या डिपार्टमेंट हमारा हो या ना हो, आर्ट के हवाले से कोई ऐसा कुछ है ही नहीं इंतजाम कि हम पढ़े या रहे, मतलब डिपार्टमेंट बंद तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आर्ट यहाँ पे किसी को शायद पसंद ही नहीं है, या पसंद भी है लेकिन बात भी नहीं करना चाहते, ना ही हमें डिपार्टमेंट दिया गया। मतलब 3-4 दफा तो हमारा डिपार्टमेंट चेंज हुआ है, अब आगे भी शायद चेंज हो या बंद हो। पेंटिंग के अलावा आर्ट के बहुत सारे तार हैं जिसको हम कहते हैं। तो एक तो आप थोड़ा सा ये बताएं कि कितनी पार्ट हैं आर्ट के, और फाइन आर्ट्स बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में कौन कौन से पार्टों पे काम हो रहा है? जी, यहाँ पे तो 3 पे हो रहा है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है और मिनिएचर है। प्रिंट मेकिंग भी है, लेकिन प्रिंट मेकिंग यहाँ पे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में कोई फैसिलिटीज नहीं है, तो प्रिंट मेकिंग सिर्फ एक ही सेमेस्टर तक महदूद है। उसके अलावा बाकी थोड़ा फिर भी पेंटिंग, स्कल्पचर, मिनिएचर है, बस सिर्फ 3 सब्जेक्ट है हमारी। तो आपका दूसरा क्या शौक है, मतलब म्यूज़िक में या मैं खुश थोड़ा नसीबी? पेंटिंग तो मेरा शौक है, फिर स्कल्पचर भी थोड़ा, इसके हवाले से भी मैं थोड़ा करती हूँ स्कल्पचर, क्योंकि मेरा माइनर स्कल्पचर था, तो स्कल्पचर में भी मुझे शौक था, लेकिन क्योंकि माइनर हुआ स्कल्पचर और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, तो बस सिर्फ 1-2 असाइनमेंट मैंने 4 सालों में 3 सालों में मैंने किए हैं, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं। एक और बात है हानि बलोच कि फ़र्ज़ करो हम देखते हैं कि शायरी के हवाले से या कि दूसरे अदब के हवाले से हम देखते हैं कि हर कोई शायर नहीं बन सकता जब तक वो अंदर से बाई नेचर शायर ना हो। तो इसी तरह आर्ट के हवाले से एक आर्टिस्ट बनने के लिए बुनियादी वो क्या चीज़ हैं कि इंसान में होनी चाहिए कि वो एक अच्छे सा या कामयाब आर्टिस्ट बन सकता है? एक आर्टिस्ट अच्छा काम करे, या उसे कोई ऐसा शौक हो आर्ट का या नेचर का, इस हवाले से तो फिर वो शायद आर्टिस्ट बन सकता है या बनना चाहता होगा। टाइम लगता है आर्टिस्ट बनने में भी, किसी मकाम पे पहुंचने के लिए भी। तो ज़्यादातर लड़कियां क्यों चुनते हैं आर्ट्स को? वो आर्ट को समझ सकते हैं शायद, इस वजह से वो आर्ट को ज्यादा ज्यादा लड़कियां आर्ट में जाना चाहती हैं। तो एक तो ये कि फाइनेंस डिपार्टमेंट बज़ात खुद बहुत यानी कि महंगा है फाइनेंशियली हवाले से, चीज़ें ख़रीदना, ये करना वो करना। तो इनको आप
کہ ہر کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا، تو آپ لوگ کیسے چلاتے ہیں ان کو؟ جی سر، بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو سپورٹ نہیں ملتا گھر والوں سے، ان کو کیونکہ ایکسپینسو بہت زیادہ ہے تو پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جسے سپورٹ ملتا ہے، جسے گھر والے ان کے ساتھ دیتے ہیں تو وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وہ کلاس فیلوز بھی بہت سی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سپورٹ وہ کرتے ہیں، ہمیں بھی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے شاید نہیں چھوڑا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو کلاس فیلو سپورٹ کرتے، اگر گھر والے نہیں کرتے، ان کا شوق ہو آگے بڑھنا نہ ان کو، تو اس وجہ سے ان کو کلاس فیلوز بھی ان کو کرتے ہیں۔ ان ڈپارٹمنٹوں میں جو اسکالرشپ کا کچھ اس طرح کا سسٹم نہیں ہے بلوچستان یونیورسٹی میں؟ جی اسکالرشپس کا ہے، مطلب ٹاپ 10 اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ ملتے ہیں، سال میں 2 یا 3 اسکالرشپ ان کے لیے آتے ہیں، ان کو ملتا ہے اسکالرشپ، جی تھینک یو ہانی جو کہ بلوچ۔ ٹاپ 10 ہیں، باقیوں کو نہیں۔ ایسا مطلب کوئی طریقہ نہیں کہ کوئی افورڈ نہیں کر سکے، وہ ایک آرٹسٹ ہے، اچھا سا ٹیلنٹڈ ہے، وہ یونیورسٹی بھی دیکھتے ہیں فرسٹ کلاس۔ امریکہ میں ایسا ہی ہے کہ اگر حالانکہ تو فائنانس ہے، خود پے کرتے ہیں، مگر اس کی کام کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اچھا ہے تو کام کر رہا ہے، ٹیلنٹڈ ہے، تو اس کو یعنی کہ 6 مہینے کے فیس وہ فری کرتے ہیں اس کو۔ تو وہاں اس طرح کا نہیں کوئی نہیں سر، یہاں پہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، مطلب آپ ایسا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کے پاس ہے پیسے افورڈ کر سکتے ہو آپ کلرز کے لیے یا کینواسز کے لیے، اپنے اسائنمنٹ کے لیے پیسے ہیں تو آپ صحیح ہو، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ چھوڑ دو ڈپارٹمنٹ۔ ایسا کچھ ہے ہی نہیں یہاں پہ، نہ ہی آپ کو شاید ٹیچر نہ ہی ڈپارٹمنٹ سپورٹ کرتا۔ اگر کوئی ایک دوست ہو تو پھر صحیح ہے، ویسے ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، شکریہ۔ تھینک یو۔